ओके सो आज की क्लास पे हम लोग देखने वाले हैं पावर बिल्डर के अंदर डेटा सोर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, व्हाट आर द यूज ऑफ द डेटा सोर्स इनसाइड द पावर बिल्डर एंड हाउ मेनी टाइप्स आर अवेलेबल, राइट? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इनसाइड द पावर बिल्डर। तो वो चीज राइट हम सर। देखेंगे आज की क्लास में। तो डेटा वे डेटा सोर्स इट्स अलाउ users to select the data source. Okay, राइट। ओके सर। means what is the data source? अभी हम लोग ने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, राइट? मैंने पूछा था कि डेटा सोर्स क्या हो सकता है पावर बिल्डर के लिए, राइट? राइट सर। तो सोर्स मतलब कि समथिंग कमिंग फ्रॉम सम एरिया, राइट? राइट सर। जैसे कि हमारी जो गंगा है, गंगा का पानी आता है हमारे हिमालय से, गंगोत्री से। यस सर। गंगा का जो सोर्स हो गया वो हो गया हिमालय। यस बट सर। पावर बिल्डर क्या है? पावर बिल्डर इज अ लैंग्वेज, इट्स अ टूल, राइट? रैपिड टूल, राइट। यस सर। रैड टूल। तो अब पावर बिल्डर के लिए जो डेटा सोर्स हो सकता है वो हो सकता है हमारे डेटा बेसिस, राइट? यस सर। बट राइट सर। पावर बट डेटा is not only coming from the database. Data is also available in the flat file, and data may also be coming from the API, right? राइट। So we had a different type of data sources. So Power Builder provide a option, okay, to select यस सर। the data sources, right? यस। राइट सर। So let me create one data window, okay? यस See, सर। so it coming in the form this pop-up to select what data source you are going to use behind यस। this data window, right? यस सर। राइट So सर। most commonly used is SQL select. By default SQL select select होकर के आता है, okay? यस सर। So we ओके। have quick select, SQL select, query, external, and store procedure. The store procedure, as we already discussed, the store procedure is the object of the database. पावर डेटाबेस। Okay, right. ओके। So store procedure have a lot of logic, okay, inside the data base. So consolidated with the logic, if you want to retrieve the data from the database inside the data window, so हम लोग select कर सकते हैं store procedure. यस Okay, सर। means store procedure कोई already available है, okay, and that we want to use, so we can use from means this option we can use inside, okay. ओके। quick select Quick select is used to retrieve the data, but it's have some limitation. Okay, it's not allow number of options are available inside the SQL. Okay, so it use when you want to retrieve a small set of record. Okay, यस SQL सर। select is a common and most useful option. यस Okay, सर। ओके। query means statically you had some query and you want to call inside the data window, so you can use query option. And external, it use to when your data is available in the form of flat files, okay, sheets, excel sheets, so that you can use external. But in standard we can see the definition of each. So let me open this option. Okay. ओके। So
This definition means this definition is I find in the chat GPT. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या होता है, जैसे जो मैंने अभी डिस्कस किया है। ओके, ओके सर। सो डेटा सोर्स टेल द डेटा विंडो वेयर एंड हाउ टू गेट इट्स डेटा, राइट? तो राइट सर। हाँ, सो डेटा सोर्स इज टेल द डेटा विंडो, सो वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, पावर बिल्डर सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा सोर्सेस डिपेंडिंग ऑन द यूज केसेस। ओके, सो ओके सर। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा सोर्स विल यूज इनसाइड द project to retrieve the data. Okay, but most commonly uses SQL Select. Okay, but यस। in term of interview perspective, we have to know these all clearly, because in the interview they will ask the questions, they will ask the differences, what are the differences between these five data sources. So for clearing the interview, we यस। have a knowledge, we should know each data source. Okay, ओके। so that's why I'm explaining here with the help of this standard definition which is given by ChatGPT. Okay, so यस सर। first is SQL Select. SQL Select means most commonly, as we discussed, right? As we राइट। know, like it's by default selected by Power Builder. So what it is, right? What it is. So a SQL query you write directly inside the data window, right? Means जब भी हम इसको select करते हैं, so Power Builder automatically ही select asterisk from the table query है select कर लेता है। ओके, ओके सर। पावर बिल्डर जनरेट द सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यूजिंग द पेंटर। मीन्स जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके आगे जाएंगे, लेट सपोज मैं सेलेक्ट किया और यहां से हम जैसे ही मतलब ओपन। टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही उसकी पूरे कॉलम्स को रिट्रीव करता है। ओके, तो इसका मतलब ओके ये सर। होता है। अब फीचर क्या है, क्या क्या फीचर है भाई एसक्यूएल सेलेक्ट में? ठीक है, तो एसक्यूएल सेलेक्ट सपोर्ट ज्वाइंस, जैसे कि तुमने पढ़े भी होंगे कि एसक्यूएल में हमारे ज्वाइंस होते हैं, राइट? यस सर। राइट सर फिल्टर, पढ़े। ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, तो ये सबको सपोर्ट करता है। यूजेस retrieve to load data, right? राइट सर। So load the retrieve method, it's support to load the data inside the data window, best for crude operation, right? Crude operation क्या होते हैं? कोड ऑपरेशन। हम्म। सर अभी पता नहीं सर मुझे। तो ये पता करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है। ओके, क्रूड इज अ कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ द क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो ये ऑपरेशन होते हैं ना, टेबल को क्रिएट करते हो आप, अपडेट करते हो, जी कुछ जी जी डिलीट जी करते हो, सर सर। तो ये कंबाइंड नेम है क्रूड। अच्छा अच्छा। ओके, तो हाँ ये तो सर इसका उसका तो पता है, मतलब ये क्रूड का नहीं पता था, जैसे कि आप बोल रहे हैं कंबाइंड वो करके कंबाइंड क्रिएट। नाम है। हाँ, जी जी सर। सो एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वी शुड नो कि क्रूड ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट? तो राइट सर। सी आर का मतलब क्रिएट, यू का मतलब अपडेट, डी का मतलब होता है डिलीट। डिलीट। यस ओके, सर। सो इट्स अ कंबाइंड नेम, क्रूड ऑपरेशन सपोर्ट करता है ये, ठीक है। राइट। राइट सर कंबाइंड नहीं बैठी है। हाँ, व्हेन वी हैव टू यूज, नॉर्मल टेबल पे यूज कर सकते हैं हम एसक्यूएल सेलेक्ट को, एंड सिंपल टू मीडियम एसक्यूएल एडिटेबल डेटा स्क्रीन्स। ओके, राइट सर। हाँ, और फिर इसके बाद में हम आता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जैसे कि हमने देखा ही है कि अ डेटा विंडो विद नो एसक्यूएल एंड नो डेटाबेस, मतलब एक्सटर्नल का यूज, डेटा सोर्स का यूज हम तब करते हैं जब डेटा हमारा डेटाबेस से नहीं आ रहा होता है। ठीक है, राइट सर। नो एसक्यूएल मतलब कि एसक्यूएल से नहीं आ रहा होता है, नो डेटाबेस भी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जब भी कोई तुम्हारा डेटा, लेट सपोज कोई फ्लैट फाइल में है, तो वो फ्लैट फाइल के अंदर है, फाइल के अंदर, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। ओके,
सो उस टाइम पर हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स का यूज करेंगे। ओके। ओके सर। you will date you will fill you fill data manually from scripts, set item, import file, etc. ओके। सो इसमें मैनुअली डेटा को प्रिपेयर करते हैं या इंसर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइल्स में रहता है ना, तो इसकी वजह से। अच्छा, राइट सर। यूज व्हेन, कब हमें यूज करना चाहिए? डेटा इज कमिंग फ्रॉम द फाइल, एपीआई और अनदर ऑब्जेक्ट, किसी अदर ऑब्जेक्ट से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है, फाइल फ्लैट फाइल की है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी टेबल नीडेड, यू डोंट वांट डेटाबेस डिपेंडेंसी, इसमें डेटाबेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि डेटा से बिल्कुल अनकनेक्ट होता है। ओके। राइट सर। ओके। हम्म। स्टोर प्रोसीजर, जो डेटा सोर्स है कब यूज किया जाएगा, तो व्हाट इट इज, राइट, यूजेस अ डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर टू रिट्रीव द डेटा। तो वही है जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, यदि हमारा डेटा स्टोर प्रोसीजर के थ्रू आ रहा है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर आउटपुट मस्ट वॉच डेटा विंडो कॉलम, ठीक है। तो जो भी, अभी ये जो ना स्टोर प्रोसीजर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, जो प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना है, ठीक है। यस। मैं एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके समझा दूंगा। और मेरा जो ये हम लोग इस चैनल पे वीडियो डालते हैं वहां पर भी स्टोर प्रोसीजर का एक वीडियो पड़ा है विद प्रैक्टिकल, तो आप उसको जो है ना देख सकते हो, राइट सर। ठीक है। ठीक। फीचर टिपिकली रीड ओनली होता है, गुड फॉर द कॉम्प्लेक्स लॉजिक एग्जीक्यूटेड इनसाइड डीबी, ठीक है। यूज व्हेन हैवी बिजनेस लॉजिक इन डीबी, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस, परफॉर्मेंस क्रिटिकल डेटा फेचिंग, राइट। सो these are the situations where we can choose store procedure, जी ओके। सर। ओके। और एसक्यूएल क्वेरी, मतलब कि जो, सॉरी, ये क्वेरी का ऑप्शन है ना, क्वेरी, क्वेरी का ऑप्शन आता है हमारा, मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है, कि क्वेरी का यस सर। ऑप्शन कब यूज किया जाएगा, तो बिल्ड क्वेरी डायनेमिकली एट रन टाइम यूजिंग, ठीक है, रन टाइम क्वेरी को यदि हम बिल्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम इसको यूज करेंगे, जैसे कि dw.setSQL select। और ये जो है ना मेथड है, ठीक है, तो हम बाद में इनको देखने वाले हैं, जैसे कि डेटा विंडो मॉडिफाई, ठीक है। तो यस ये सर। मेथड है, तो दिस इज द सिचुएशन वेयर वी कैन सेलेक्ट दिस, ओके। बट दीज आर द वेरी रेयर, मोस्टली वी हैव टू यूज ओनली एसक्यूएल सेलेक्ट, ओके। ओके सर। हाँ, डेटा स्टोर, तो डेटा स्टोर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो डेटा डेटा स्टोर का यूज किया जाता है जब हमें जो है नॉन विजुअल वर्जन्स ऑफ डेटा विंडो के यूज करने होते हैं, ठीक है, सेम डेटा इंजन बट नो यूआई, ओके। सो डेटा ओके। स्टोर, डेटा स्टोर, डेटा स्टोर, तो ये हमारी ये हो गया ना पूरे डेटा, ये एक अलग ये तो सर, यस ये सर। ये एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यस ओके, सर। सो दिस इज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसको हम बाद में देखेंगे, ओके। ओके सर। तो ये समझ में आ गया ना। यस सर। अब वो कैसे क्रिएट करना है, तो मैं एक ये डेटा विंडो भी हम क्रिएट कर देते हैं, देख लेते हैं उस पर डेटा कैसे आता है, यदि डेटा विंडो क्रिएट नहीं किया है अभी तक तुमने, ठीक है। यस तो सर। अब मैंने लास्ट टाइम ग्रिड डेटा विंडो का यूज करके एक मतलब हमने एक विंडो बनाई थी, ग्राफ का भी हमने एक बनाया था, अब मैं यस इस सर। बार बनाता हूँ टैबलर का, राइट सर। ठीक है। अब टैबलर टाइप है, और इसको इसको हम जो है ना एसक्यूएल सेलेक्ट डेटा सोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट करने के बाद में फिर हमारे पास में जितनी भी टेबल्स अवेलेबिलिटी हैं डेटाबेस में, वो सभी आ रही हैं, ठीक है। अब आप कौन सी टेबल्स के लिए ये डेटा विंडो बनाना चाह रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इस पे दो ही कॉलम है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर अब कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इनके ऊपर ऐसे से क्लिक करेंगे। ठीक है, जी जी और इसके बाद में जब ये कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं, पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर जा करके रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के बाद में अब यहाँ पर ये पॉपअप आता है कि आप यदि कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, डेटा विंडो में कुछ उसका कलर या फॉन्ट, इस तरीके की चीजें यदि प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि डेटा विंडो क्या है, डेटा विंडो इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अटैच विद सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ से राइट हम सर। प्रॉपर्टी वगैरह चेंज चेंज कर सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, ठीक। फिर इसको फिनिश कर देंगे। अब फिनिश करने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जैसा कि देखोगे ये इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। यस और फिर इसके बाद में जो डेटा है वो डेटा भी मुझे दिख रहा है प्रॉपरली। तो अब हम इसके बाद में ना इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं जरूर, ओके, तभी वो मुझे यहाँ पर सिस्टम ट्री पे दिखेगी। ठीक है, अब ये जो है ना डेटा विंडो टैबुलर, ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैंने किया तो ये देखो यहाँ पर ये आ गई ना विंडो, ठीक है। राइट। अब हम इसको जो ना किसी विंडो पे यदि दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा। विंडो पे दिखाने के लिए। हम्म, अब जैसे कि मैंने डेटा विंडो पे ये दो ऑलरेडी हमने डेटा विंडो प्लेस कर रखी हैं इस विंडो पे। ठीक है, ये यस है सर। ग्रिड, ग्रिड प्रेजेंटेशन की है। ठीक है, अब डिफरेंस देखना है ना मैं, जैसे कि तो ये ग्रिड का है। अब इसके बाद में ये ग्राफ है। अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ टैबुलर, ठीक है। राइट सर। तो हम लोग इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। और टैबुलर हमने ये बनाई है ना, तो मैं जी इसको सर। यहाँ पर जो है ना ये उठा करके ऐसे सीधे यस यहाँ सर। पर रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दो ही कॉलम है इस पे, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर सिर्फ दो ही कॉलम मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, इसको सेव कर दिया मैंने। इसको भी जो भी चेंजेस होते हैं हमारे सेव करने होते हैं यहाँ से। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ यस पर सर। देखोगे ना तो कि इस पे भी डेटा दिख रहा है मुझे, इस पे भी दिख रहा है, बट यहाँ पर डेटा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भी हमने वो कॉपी करने सर, कॉपी करना होता है ना, कॉपी करने के बाद रिट्रीव में जाने की क्योंकि इस पे मैंने अभी तक कोड नहीं लिखा है पावर बिल्डर का, रिट्रीव मेथड का कॉल नहीं किया, क्योंकि रिट्रीव मेथड ही डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके हमारी डेटा विंडो पे दिखाता है। यस सर। ठीक है ना। जी। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कोड लिखना होगा। हाँ, मुझे जो ना कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट डेटा विंडो पे लिखा था ना, यदि तुम्हें याद हो। जी सर हाँ। लिखा था लिखा ना, था। डी यस डब्ल्यू सर। सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट। वो कहाँ पर लिखा था हमने? वो लिखा था विंडो के ओपन इवेंट में। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी क्या है, ये तीसरी विंडो है। ठीक है, तीसरी विंडो है, तो यहाँ पर ये थर्ड। फ्री करेंगे, फ्री करेंगे। ठीक है, अब यस यहाँ पर सर। मैंने इसको सेव किया। ये देखो यहाँ पर डेटा दिख रहा है मुझे। यस सर। तो आ गया। डेटा को रिट्रीव करने के लिए ये बात ध्यान जरूर रखो कि मुझे जो ना सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट ये जो मेथड है इसको कॉल करना पड़ेगा। और वहां पर एसक्यूएल सीए, ठीक है, जी सर। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो
मतलब इसको जो ना हम इस पे पास करते हैं पैरामीटर के थ्रू, और रिट्रीव मेथड यूज करते हैं, ठीक है। राइट सर। तो अब ये सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट है जैसे, इन सभी चीजों को क्या, इनको काम करके इनको जो ना इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि इन बिल्डअप, ठीक। सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट जो बना ऑर्डर में एक मैथड है, ठीक है, मैथड है जो हमारे डेटा को डेटा बेस से कनेक्ट करता है। आवाज सर, वॉइस थोड़ी कट रही है आपकी, ऐसी आ रही है कट कट के। ओके ओके। नोट क्लियर है अभी वॉइस। अभी क्लियर है ना? अब क्लियर है। हम्म। तो ये जो है ये सब, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि यूज एसोसिएट ट्रांजैक्शन विंडो कंट्रोल और डेटा सोर्स, दिस एसोसिएशन अलाउ द डेटा विंडो टू interact with the database using the connection detail transaction management specified in the transaction object, right? राइट सर। राइट। तो ये जो क्या है, ये मेथड है, मेथड, ठीक है, राइट सर। जो यस सर। हमारे जो ये जो एसक्यूएल सीए होता है ना, एसक्यूएल सीए, एसक्यूएल सीए को, यस सर। एसक्यूएल सीए को हम ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। यस सर। ओके ओके। तो अब ये जो ना ओके। एसक्यूएल सीए है, इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, राइट। तो एट्रीब्यूट भी जानने जरूरी है। तो अभी मैं, जो अभी हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट एसक्यूएल सीए वगैरह के ऊपर ही करने वाले हैं, जहां पर हम ये देखेंगे कि इसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखोगे एसक्यूएल सीए ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट सेटअप, यू फर्स्ट नीड टू कॉन्फ़िगर अ ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट लाइक दी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। राइट सर। It's involved setting its attributes such as DBMS, server name, database, log ID, log pass, auto commit to define the database connection। तो ये जो ना, ये जो हम पास कर रहे हैं ना इस पे, एक मिनट, जी सर। तो ये जो पास करते हैं ना, ये इस पे क्या होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। राइट सर। वो सब एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए। जैसे कि ये देखोगे यहाँ पर एट्रीब्यूट एसक्यूएल सी है, एसक्यूएल सी है, डीबीएमएस है, ठीक है, डेटाबेस यस सर। मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ ये एक जो ना बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जो हमें करके रखनी होती है, ठीक है। जी। ओके, तभी हमारा जो है डेटा विंडो, जो हमारी डेटा विंडो है वो ओडीबीसी प्रॉपर्टीज के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होती है, जी सर। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो ना डीबी परम, तो ये जो ना कनेक्शन स्ट्रिंग होती है ना, डीएनएस एसक्यूएल सर्वर, तो ये जो ना मेरे डेटाबेस से कनेक्ट करता है। राइट सर। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी कनेक्शन बनाने के लिए यूज होती हैं। मतलब कि एसक्यूएल सीए, जो एसक्यूएल सीए हमारा डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है, वो डेटा विंडो को हमारी डेटाबेस से कनेक्ट करता है, राइट सर। ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्शन, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द डेटाबेस यूजिंग कनेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा ना ये कनेक्ट यूजिंग एसक्यूएल सीए। राइट सर। लिखा है। तो हाँ, तो ये जो चीज लिखी है ना, ये होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशंस फॉर कनेक्टिंग द डेटाबेस, यस सर।
ठीक है, अब इनके बारे में हमें पढ़ लेना है कि जो एसक्यूएल ये इसके जो क्या क्या एट्रीब्यूट है, जैसे डीबीएम है, कमिट है, डीबीपर्म है। ठीक है। और अब ये लॉग आईडी लॉग पास वगैरह नहीं यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, इसकी वजह से नहीं लिखी है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है। फिर ऑटो कमिट फॉल्स लिखा है। ठीक है। तो ये जो ना चीज है ना, ये एट्रीब्यूट हम पूरे एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है एसक्यूएल सीए। ओके। ओके तो सर। एसक्यूएल सीए इट यूज टू create a connection environment between database and the power builder। यस सर, दोनों के बीच कनेक्शन करता है। हाँ, एसक्यूएल सी। राइट। यस। इसको ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। राइट। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा मेथड यूज हुआ है, जैसा कि यहाँ पर देखोगे, डेटा विंडो, वो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्या सीखा, कि ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट इज अ पावर बिल्डर ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन पावर बिल्डर एंड डाटाबेस। database with the help of some SQL CA attribute like server name, DBMS, database, log ID, pass ID, and auto commit। ओके। यस सर। तो ये ओके। जब मेरी ये जो डेटा विंडो है, अब इससे कनेक्शन मेरा बन गया, फिर मैं एक दूसरा पावर बिल्डर का मेथड यूज करूंगा, फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे कि मेथड यस। किसको कहते हैं, फंक्शन किसको कहते हैं पावर बिल्डर के अंदर, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। तो यस सर। इनमें भी डिफरेंसेस हम देखेंगे। ओके। तो रिट्रीव मेथड मैंने यूज किया है। रिट्रीव मेथड जब भी हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, वो डेटा रिट्रीव करके मुझे यहाँ पर दिखा देगा। बट अगर कुछ इशू मेरे कनेक्शन पे ही हो गया, तो यहाँ पर मुझे एरर आ जाएगा और रिट्रीव मेथड मेरा फेल हो जाएगा। बट यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर एरर यस सर। लाना है तो कुछ यहाँ पर गलती करनी पड़ेगी। कुछ भी हम गलती कर सकते यस। हैं, जैसे कि मैं इसको ना लिखूं। ठीक है। और इसको रन कर दूं। ठीक है। तो देखो ये अभी एरर आने लगा ना, देखो यहीं पर आ रहा है कि सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यस सर। इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इसकी वजह से यदि हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पे कुछ मतलब कि गलत लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमें पावर बिल्डर कनेक्ट नहीं होने देगा और हमें ये एरर शो देगा। होंगे। यस सर। हाँ, एरर शो होगा। तो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए। यस सर। समझ समझ में आ गया ना, डेटा सोर्स ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। यस सर। ठीक है। तो यस सर। इनको जो है ना, एक बार देखो अपनी तरफ से, और ठीक है सर। ट्राई करो आज। कल फिर हम जो है ना ये ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को और डिटेल में देखते हैं, बट हम ऑलरेडी आज देख चुके हैं। बट अदर और फंक्शंस जो भी हम यूज करने वाले हैं रिट्रीव मेथड के अलावा, तो वो देखेंगे। ठीक है। यस। तो आज अभी इन पे ही प्रैक्टिस करो। जी जी हम लोग जी सर। कनेक्ट कनेक्ट करते हैं कल। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक ही बता रहा हूँ, ताकि जो है ना आप उसको जो है ना समझ सको और उस पर प्रैक्टिकल कर सको।